Hello everyone, welcome back to Is the Clat. This is Ritik Sinha. I'm a student at Maharashtra National Law University, Mumbai from 2020 to 2025 batch. And in this video, I will talk about 5 common myths that are related to Clat and their truths, of course. Alright. Before that, if you are new to this channel, please consider subscribing to it because we make videos on Clat and its related concepts on syllabus, strategy and all. And also I run a mentorship program where I would help you to excel in CLAT 2022. And also there is a welcome form that is attached in the description box of this video where you can you can suggest some new video lessons, where you can suggest what all content should this channel make for you. Alright, so all this would be more streamlined and the content would be more relevant for you, and it would help you even more in preparing better for the examination. So what I would do in this video is firstly let the myth unfold over here, and then talk about what is the perception, what is the myth exactly, what are the factors that I have aggravated that myth or aggravated or contributed towards evolution of that myth, what is my opinion on that, and what is the prevalence value. So what I mean by prevalence value is that how prevalent is the myth. Alright, so let's start actually with the first myth, है ना, and then we will take it forward from there. आपको ज़्यादा better understanding मिलेगी. So the first myth is here itself, that the syllabus is huge. Alright, so what is the perception कि भैया बहुत बड़ा syllabus है ना, the syllabus is almost infinite. ये perception आता है. What is the factor? What are the factors that contribute to this myth or this perception? ठीक है. So the first thing is current affairs. ठीक है. Where you technically have unlimited syllabus. क्योंकि जो क्वेश्चन सेटर्स है वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Everything under the sun. एक सिंपल सा रूल है. ठीक है. What could be another factor? Another factor could be CR, critical reasoning, legal reasoning and RC में there are a lot of concepts. Alright, and उससे भी जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंफ्यूज नहीं, इन द सेंस एक परसेप्शन बिल्ड होने लगता है कि भाई बहुत बड़ा सिलेबस है. एंड लास्टली वी ऑल्सो हैव QT, राइट, जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, 5 से 10 मिनिमम है, जिसे हमें लगता है कि बहुत समय लगेगा, है ना, कंप्लीट करते हुए. एंड उसके वजह से ये परसेप्शन बिल्ड हो चुका है कि जो भाई क्लैट का सिलेबस है वो बहुत बड़ा है. बट व्हाट इज द एक्चुअल ट्रूथ और से माय ओपिनियन ऑन इट? सी, करंट अफेयर्स में टेक्निकली सिलेबस अनलिमिटेड है, बट वी डू नॉट हैव टू थिंक टू मच अबाउट दैट. एवरी मंथ इफ वी कवर, है ना, एवरी मंथ, सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग, एवरी मंथ इफ वी कवर 30 to 45 इवेंट्स, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर. जो सबसे इम्पॉर्टेंट 30 से 45 इवेंट्स हैं, हमने क्वेश्चन पेपर में यही देखा कि 30 से 45 इवेंट्स या फिर इनफैक्ट 20 से 25 इवेंट्स भी अगर किसी ने करा होता दिसंबर से लेकर के क्लैट के मंथ के एक मंथ पहले तक, मान लो 23 जुलाई को क्लैट था, तो जुलाई तक, या फिर जुलाई नहीं, जून तक, है ना, तो 7 में से you could easily hit 7 में से you could easily hit 6 events. All right, and to be very frank, preparing for all or anticipating that what you have covered, उसमें से ही 7 में से 7 events आएंगे, या 8 आए तो कब किसी साल तो 8 में से 8 events आएंगे. That is almost impossible, next to impossible. ठीक है. तो ये perception कि करंट अफेयर्स का अनलिमिटेड सिलेबस है, ये बहुत हद तक गलत है. ठीक है. टेक्निकली यस, दिस इज़ करेक्ट कि कुछ भी पूछ सकते हैं, एवरीथिंग अंडर द सन. बट जो प्रैक्टिकल बात आती है जहाँ पे, वो ये है 30 से 45 इवेंट्स आपको 7 से 8 महीने के लिए करने पड़ेंगे. ठीक है. और उन इवेंट्स को अच्छे से डीपली कवर करना पड़ेगा. देन यू वुड बी स्कोरिंग वेरी हाईली इन दिस करंट अफेयर सेक्शन. CR, LR, RC में कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है. आई हैव क्लियर्ड क्लैट इन 2020 itself, so I have a first hand experience though, and I have a fair idea after spending a lot of time on this examination कि CR, LR, RC में बहुत ही limited concepts हैं, and the concepts they are very very linked. So if you are doing good at CR,
it is very likely that you would be doing good at RC as well. एंड अगर आपने लीगल लैंग्वेज को थोड़ा ब्रशअप कर लिया तो यू वुड बी डूइंग वेरी गुड एट और यू वुड बी डूइंग ग्रेट एट लीगल रीजनिंग एज वेल. ठीक है, दैट इज़ माई ओपिनियन. एंड द प्रिवेलेंस वैल्यू इज़ आई वुड से 80%. कि बहुत लोगों के जो बहुत खास करके जो बिगिनर्स होते हैं या जो पहली बार क्लैट अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, जो अभी खास करके फ्रेशर्स हुए, राइट, उनमें से काफ़ी लोगों में ये परसेप्शन ज़रूर होता है कि द सिलेबस इज़ ह्यूज, अगर मैं सिर्फ 4-5 घंटे पढ़ रहा हूँ तो आई एम नॉट डूइंग इनफ. ये परसेप्शन इस कारण बिल्ड हो चुका है. ठीक है, इनफैक्ट आई वुड टॉक अबाउट दिस इन वन ऑफ द अदर मिथ्स एज वेल. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मिथ. तो आई थिंक आइडिया क्लियर है, राइट. परसेप्शन क्या है, फैक्टर्स क्या है, मेरा ओपिनियन क्या है और प्रिवेलेंस वैल्यू क्या है, जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाए. मिथ नंबर 2, इफ़ आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश आई कैन नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन. सो व्हाट इज़ द परसेप्शन कि भैया ऐसा है कि स्मॉल टाउन के अगर मैं हूँ तो मुझे क्लैट क्लियर करने में बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी. दिस इज़ द परसेप्शन. एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस परसेप्शन. आई थिंक पार्ट ऑफ दिस इज़ ट्रू. ठीक है, सबसे पहले तो ट्रूथ वैल्यू है ना, कि यू हैव टू बी good at least at the basics of English language to be able to clear the examination. There is some truth value to this, I would not deny that. ठीक है. The second myth is कि जो बहुत सारे क्लैट टेकर्स होते हैं उसमें से जो भी क्वालिफाई करते हैं, राइट, लेट्स से क्वालिफाई मतलब अच्छे रैंक से 1500 के अंदर रखते हैं अभी के लिए. ठीक है, 1500 रैंक के अंदर जो क्वालिफाई करते हैं उनमें से काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं वो मेट्रो सिटीज़ से होते हैं. दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, है ना, आगरा, इस तरह के सिटीज़ से ज़्यादातर बच्चे होते हैं जो कि क्वालिफाई करते हैं. एंड स्मॉल टाउन से, जैसे जो स्मॉल टाउन के कैंडिडेट्स का प्रपोर्शन है इन द मेरिट लिस्ट बिलो 1500, है ना, वो काफ़ी कम है, प्रपोर्शन काफ़ी कम है, ऐसा जनरली देखा गया है. तो दिस इज़ वन ऑफ द अदर फैक्टर्स. अ थर्ड फैक्टर कुड बी कि जितने भी स्टूडेंट्स जो स्मॉल टाउन में रहते हैं, राइट, कैंडिडेट्स, उसमें से कुछ ज़रूर हैं जो कि इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं है. ठीक है, सो व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस. इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं होने की वजह से उन्हें वर्नाक्युलर मीडियम में कई बार पढ़ना पड़ता है, या फिर अपनी पढ़ाई का कुछ हिस्सा जो है 10th-12th तक, कुछ हिस्सा जो है जैसे 5th तक या 7th-8th तक उन्हें वर्नाक्युलर मीडियम में करना पड़ा. और उसके वजह से जो उनकी इंग्लिश की जो डेवलपमेंट होनी थी वो ठीक से हो नहीं पाई. एंड उसके वजह से क्या हुआ, एग्जामिनेशन में क्लियर करने के लिए प्रॉब्लम आई. ठीक है, दिस इज़ अनदर फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स टू दिस. व्हाट इज़ माई ओपिनियन. So my opinion is yes, there is some truth value attached with this notion कि if I am not good at English, I cannot clear the examination. There is some truth to this. But any student who is not very good at English must consider that he or she has 8 to 10 months of preparation left. And I can guarantee you that you can be very, very good at English in the next 4-5 months itself. Alright. सिलेबस बहुत लिमिटेड है. ठीक है, अगर आपने ये 4-5 महीने में इंग्लिश को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लिया, राइट, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने का एक सिंपल सा तरीका मैं बोलूँगा कि इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, क्लैट के, एलेट के, एंड इफ़ यू आर डूइंग गुड एट देम, ठीक है, या फिर आप कुछ बुक्स ट्राई कर सकते हो. रैन एंड मार्टिन हो गया, इंग्लिश इज़ ईजी हो गया, है ना. इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम हियर तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेरी बेसिक्स क्लियर है ना. एंड उसके बाद प्रिपरेशन को फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन करना चाहिए. ऑल्सो टिप ओवर हियर वुड बी कि अगर आपकी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, राइट, तो मैथ्स और करंट अफेयर्स के अलावा आप ज़्यादा ध्यान मत दो अभी दूसरे सब्जेक्ट्स में. पहले 2-3 महीने आप इंग्लिश को बिल्डअप करो. ठीक है, इंग्लिश को बिल्डअप करने का तरीका यही है कि बस न्यूज़पेपर्स रोज़ पढ़ना है, ओपिनियन सेक्शन, उसमें जो इंग्लिश के वर्ड्स टफ लगे हमें उन्हें या तो नोट करना है या तो दिमाग में रखना. अगर दिमाग में नहीं रख पा रहे हो तो ज़रूर से ज़रूर नोट करना है, हर महीने हर हफ्ते रिविजन करते रहना है. एंड इस तरह से दिस इज़ माई ओपिनियन फ्रैंकली. प्रेवलेंस वैल्यू आई वुड से कि 60/100 कि हाँ देयर इज़ लॉट ऑफ परसेप्शन. एंड इनफैक्ट वर्नाक्युलर मीडियम से जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत लोग अटेम्प्ट नहीं करते हैं क्लैट को. ठीक है, तो इसलिए प्रेवलेंस वैल्यू उतनी हाई नहीं है, बट ट्रुथ वैल्यू तो है डेफिनेटली, राइट. थर्ड,
I need to study for tens of hours every day. So this is another myth freshers के मन में आता है, ठीक है. What is the perception कि मुझे रोज़ के रोज़ 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे. अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो आई एम नॉट डूइंग जस्टिस विथ माई प्रिपरेशन, एंड उसके वजह से जो मेरी कैपेसिटी है या फिर जो मेरी पोटेंशियल है वो उसमें मैं खरा नहीं उतर पाऊँगा. आई वुड नॉट बी एबल टू परफॉर्म up to my potential in the examination. This is the perception. What factors can contribute to this? First is this peer pressure, है ना. कई लोग होते हैं जैसे दे पोस्ट कि मैं इधर 10 घंटे पढ़ता हूँ, 12 घंटे 15 घंटे पढ़ता हूँ, कुछ तो ऐसे बोलते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर बोस्टिंग. आई थिंक 90% ऑफ देम आर बोस्टिंग, है ना. एग्जामिनेशन अच्छे से क्लियर करने से मुझे समझ में आ गया कि 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. हाँ, यू नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन करंट अफेयर्स, बट एक बार आपने CR, RC और LR के बेसिस को कवर कर लिया, देन एज आई सेड दे आर लिंक्ड, एंड वो आप भूलते नहीं हो वो चीज़, ठीक है. करंट अफेयर्स आप एक बार भूल सकते हो, लेकिन उसमें रिवीजन की ज़रूरत होती है. लेकिन इसमें ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं होती है. बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑथर्स ओपिनियन, व्हाट द ऑथर्स मेन आइडिया इज. ऑथर ने आपको जो कहा वो आपको समझ में आया कि नहीं. द क्वेश्चन सेटर ओनली टेस्ट यू ऑन दिस, मतलब मोस्टली, है ना. अनदर फैक्टर जैसे मैंने कहा, जो मिथ नंबर 1 है वो ही इसमें कंट्रीब्यूट करता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आई नीड टू स्टडी फॉर टेंस ऑफ आवर्स एवरी डे. सो व्हाट इज़ माई ओपिनियन ऑन इट? माई ओपिनियन इज़ वेरी सिंपल कि अगर आपने अभी से हमेशा से 4-5 घंटे पढ़ाई करा, एंड यू डू इट फॉर 5, 6, 7, 8 months, 5 to 8 months डिपेंडिंग ऑन योर इंडिविजुअल कैपेसिटीज़, आपको एक भी दिन ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगा जिसमें आपको 8 से ज़्यादा घंटे पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी. एक भी दिन नहीं. एग्जामिनेशन के एक दिन पहले हो या एग्जामिनेशन के एक हफ्ते पहले हो, कंप्लीटली अननेसेसरी होगा अगर आप 8 से ज़्यादा घंटे पढ़ो तो, है ना. इसलिए जो भी ड्रॉपर्स हैं, राइट, उसमें मैं सजेस्ट हमेशा यही करूँगा कि आप ज़रूर 5 से 6 घंटे रोज़ पढ़ाई करो, है ना. उसके अलावा आप कुछ अपना हॉबी भी डेवलप करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. यू आर डेफिनेटली फ्री टू डू दैट. 5-6 आवर्स सेल्फ स्टडी हो गया. मैं कोचिंग के टाइम को बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर रहा हूँ. 5-6 आवर्स जब भी मैं पढ़ने की बात करता हूँ, आई ओनली टॉक अबाउट सेल्फ स्टडी. तो कोचिंग हटा के अगर 5 से 6 घंटा आप रोज़ के रोज़ पढ़ रहे हो, तो उसके अलावा आप कुछ और और अच्छे हैबिट्स भी डेवलप कर सकते हो. दिस वुड नॉट हार्म योर प्रिपरेशन एट ऑल, ठीक है. प्रेवलेंस वैल्यू आई नीड टू स्टडी, ये इसको मैं काफ़ी हाई रैंक करूँगा. 90 on 100, 90% बोलूँगा, क्योंकि जो पीयर प्रेशर है ना, आप हर जगह टेलीग्राम ग्रुप्स, ये भी एक फैक्टर रहता है कि टेलीग्राम ग्रुप्स जो होते हैं उसमें कई सारे बच्चे जो हैं वो इधर उधर की बातें करते रहते हैं कि 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ा नहीं तो फिर ये हो जाएगा, 12-15 घंटे पढ़ना ज़रूरी है, मुझे तो एक टॉपर ने बताया था, ये बताया था, वो बताया था. द ट्रूथ इज़ कि अगर आपने 4 से 5 घंटे पढ़े, है ना, 5 से 6 महीने तक कम से कम, तो आपको एक भी दिन ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगा. एंड इनफैक्ट आप अगर फ्रेशर भी हो तो भी अगर आप 3 से 4 घंटे अभी पढ़ो, एंड सिंस अभी स्कूल्स बंद हैं तो इनफैक्ट आप एक तरह से ड्रॉपर ही हो, राइट. ज़्यादा स्कूल पे अगर ध्यान नहीं देना पड़ रहा है तो फिर यू हैव ऑलमोस्ट एज मच टाइम एज ड्रॉपर्स हैव, राइट. सो ये बात ज़रूर सही है. ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मिथ. सिंस आई हैव इन्वेस्टेड एन ईयर टू प्रिपेयर फॉर क्लैट, आई वुड बी एबल टू क्लियर इट. व्हाट इज़ द परसेप्शन? बस एक बार मैंने ड्रॉप ले लिया ना, लास्ट ईयर मैंने ठीक ठाक परफॉर्म किया था. मेरे 2000 रैंक थे, 2500 रैंक थे, शायद मेरे ट्रिपल डिजिट में रैंक था, या डबल डिजिट तो बहुत ही रेयर चांस है कि किसी ने वापस अटेम्प्ट करने का सोचा होगा. बट कुछ ट्रिपल डिजिट के रैंक होल्डर्स ज़रूर ड्रॉप लेते हैं रैंक, या फिर कॉलेज इंप्रूव करने के लिए, या फिर अटेम्प्ट ज़रूर करते हैं कॉलेज में रहते हुए, है ना, यूनिवर्सिटी में रहते हुए. सो व्हाट इज़ द परसेप्शन कि मैंने एक बार ले लिया, मुझे ठीक ठाक नॉलेज है, 2500, 3000, 4000 रैंक आए मेरे, इनफैक्ट 5, 7, 8000 भी आए हैं. तो I know I am very good with the basics of the examination. Now I would be able to clear it or get the university of my choice without putting too much effort. This is the perception. What are the factors that have contributed to this? A significant chunk of those who clear the examination very well. Let's say जिनकी रैंक्स 300 के अंदर है या 500 के अंदर है या फिर लेट्स से 800 के अंदर, उसमें से कई सारे जो हैं उन्होंने ड्रॉप लिया होता है. कई सारे, आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट मैं जनरली देखता हूँ कि कई सारे जो बच्चे हैं उन्होंने ड्रॉप लिया होता है एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने के लिए, एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए. ओके, तो ये एक फैक्टर ज़रूर है. दूसरा है कि टाइम. सो व्हेन इट इज़ एंड यू हैव
ऑलमोस्ट अनलिमिटेड टाइम, राइट, है ना। तो ये एक फैक्टर भी ज़रूर होता है कि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, मेरे बेसिक्स तो क्लियर हैं ही, तो अब मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द परसेप्शन एंड दिस आर द फैक्टर्स, राइट, कि टाइम और बेसिक्स क्लियर हैं। व्हाट इज़ माई ओपिनियन, दिस इज़ कम्प्लीटली अनट्रू, है ना, बिल्कुल ही गलत बात है, बिल्कुल ही इनएक्यूरेट बात है। ऑलराइट, ऐसा एक मैं बोलता हूँ ऐसा 10% भी चांस आपका इंक्रीज़ नहीं हो जाता एग्जामिनेशन क्लियर करने का या फिर अपने चॉइस की यूनिवर्सिटी पाने का। चलो 10% से ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप जैसे टॉप 3 को एम कर रहे हो तो 10% भी चांस नहीं बढ़ जाता कि आपने सिर्फ ड्रॉप ले लिया तो आपका क्लैट क्लियर हो जाएगा। यू हैव टू पुट द एफर्ट्स, उसका कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ माई ओपिनियन ऑन दिस। प्रेवलेंस वैल्यू क्या है, आई थिंक बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ड्रॉप लेते हैं क्लैट के लिए, तो आई वुड से, एंड बहुत से बच्चों के भी दिमाग में ये सब भरा होता है, तो आई वुड से कि 80% 85% जो प्रेवलेंस वैल्यू है उसकी ये है। लेट्स टॉक अबाउट आवर लास्ट मिथ्स, एंड दिस इज़ आई थिंक आई वुड गिव इट 95, है ना, बिफोर हैंड प्रेवलेंस वैल्यू में। व्हाट इज़ द परसेप्शन, आई मस्ट जॉइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट टू एक्सेल इन क्लैट। What are the factors? I would be very honest with you guys over here, but at the same time I must make myself clear that I am not against coaching institutes at all, ठीक है, but here is the truth that a lot of institutes, good institutes as well, have to hire digital marketers, digital marketing experts, ठीक है, digital marketing experts, and what their job is, आप digital मार्केटर्स के बारे में जानते हो, राइट, कि व्हाट देयर जॉब इज कि टू सेल और टू इंक्रीज द बिजनेस, राइट, एंड हाउ वुड दे इंक्रीज द बिजनेस, वन इज डूइंग इट एथिकली, जो कि बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स करते हैं, बट सम ऑल्सो डू इट द अदर वे। सो व्हाट दे वुड ट्राई एंड डू इज कि क्रिएट अ परसेप्शन अमंग द स्टूडेंट्स कि इफ़ यू डू नॉट जॉइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट यू वुड नॉट बी एबल टू क्लियर क्लैट। और इसमें कई सारे जो बच्चे हैं वो Tier 2 सिटीज़ से होते हैं, Tier 3 सिटीज़ से होते हैं, जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, और वो जो है जल्दी में दे ट्राई एंड बाय द इंस्टीट्यूट्स प्रोग्राम, एंड उसके बाद वो फंस जाते हैं, बिकॉज रिफंड पॉलिसी आप जानते हो कितनी वेग होती है, कितनी मुश्किल होती है रिफंड मिलना किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, है ना। एक और फैक्टर क्या हो सकता है कि इट इज़ रिलेटेड कि जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इन पर्सन मिलने जाते हो, है ना, डिजिटल मार्केटर्स तो अभी की बात कर रहे हैं, बट जब भी आप इन पर्सन विजिट भी करते हो, वहाँ भी जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं उनका काम क्या होता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, राइट, जो रिसेप्शनिस्ट जिसे हम बोलते हैं, उनका काम क्या होता है कि आपको कन्विंस करना कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ले लो। और वो किस तरह से कर सकते हैं कि you know what, you would not be able to clear CLAT in the exam without us, ठीक है। ये एक परसेप्शन उन्हें बिल्ड करना नेसेसरी होता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अगेन आई एम सेइंग कि आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऑफ दिस, बट एटलीस्ट द कैंडिडेट और द स्टूडेंट मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, ऑलराइट, ये मेरा मेन मोटिव है। और एंड एक और फैक्टर क्या होता है, एक जेन्युइन फैक्टर भी है कि बहुत सारे जो रैंक होल्डर्स होते हैं क्लैट में या टॉपर्स होते हैं, दे आर एसोसिएटेड विथ सम और दी अदर इंस्टीट्यूट। कई बार क्लासरूम प्रोग्राम में होते हैं, है ना, क्लासरूम प्रोग्राम से एसोसिएटेड होते हैं, कई बार सिर्फ कॉरेस्पॉन्डेंस प्रोग्राम से होते हैं कि टेस्ट सीरीज़ ले लिया, स्टडी मटेरियल ले लिया, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो अपना नाम डाल देते हैं, तो ये होता है। दीज आर द फैक्टर्स। एक ये जेन्युइन फैक्टर ज़रूर है, बट ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये जेन्युइन नहीं है, आप खुद समझ सकते हो, है ना। What is my opinion? Completely untrue, ठीक है। You need not join a coaching institute to excel in CLAT 2022. So prevalence value, as I said, 95 on 100 है। Absolutely, coaching institutes do sometimes make your job easier to excel in CLAT 2020 or 2022, ठीक है। कोई भी CLAT में I mean, but definitely this is not a necessity at all. There are significant, मैं अब नंबर कोट नहीं कर सकता, but I can definitely assure you कि there is a significant chunk of people who do very well in examination, get double digit rank या फिर 300, 500, 800 रैंक आती है उनकी, top 7, top 10 एनालिस्ट में एडमिशन मिलता है उन्हें,
विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट। एंड कई बार जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद भी वो बच्चा जो है वो सेल्फ स्टडी के ऊपर ही जो है वो उसने एक्सेल करा है, ठीक है। इफ़ यू टॉक टू अ लॉट ऑफ टॉपर्स और रैंक होल्डर्स, दे वुड टेल यू दिस। ऑलराइट, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप you found this information useful. If you did, please press the like button. All right, this helps feed the YouTube algorithm and उससे जो है इस चैनल का जो रीच है वो बढ़ता है। I'm sorry for the background noise. I think there are these jackals or probably wolves who are howling and barking. They are definitely not dogs. ठीक है, तो I hope this video was useful. As always, I will see you in the next one. Till then, goodbye, take care, and all the best.